someone came and said that, please, Mukesh sir is calling you because Amit ji has come and he wants to meet you guys. So I took our father as well with us, and he met us, spoke to us, and then my father came, and that line, my father was blushing. Means I can see in his eyes that watery eyes. He was not crying, but just that overwhelmed when you get. It was one of those memories which I and Krunal will always remember of our father as well, being so proud, and at the same point of time, it's one of those days when, it's one of those moments which can't go away from your mind. सपने सच होते हैं, शर्त बस इतनी सी है कि सपने देखने की हिम्मत होनी चाहिए, और होनी चाहिए हार्दिक और कृणाल के पिता हिमांशु पंड्या की तरह अपने सपने को पूरा करने की जिद। हिमांशु पंड्या का सूरत में कार फाइनेंस का अच्छा खासा बिजनेस था, जिंदगी अच्छी चल रही थी। एक रविवार हिमांशु बालकनी से कॉलोनी के बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देख रहे थे, जब उनकी नजर अपने 6 साल के बड़े लड़के कृणाल पे पड़ी। First thing comes in my mind where I was 6 years old. I was playing in the colony in Surat, which was back in 97, 96. And there was Sunday, and my dad was watching me batting, watching me how I play at the age of 6. And then he gave me a pair of gloves, and then he said that, okay, I'll give you gloves. And then from there, I started playing cricket. So I still remember that thing where he saw me from the balcony. I was playing downstairs, and from there, the actual cricket journey started. हिमांशु कृणाल से इतने प्रभावित थे कि एक स्थानीय कोच की सलाह पर उसे पूर्व भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे की एकेडमी में दाखिला दिलाने वडोदरा ले गए। जब कृणाल 7 साल का था, जो आया था, जो उनके फादर लेके आए थे हिमांशु पंड्या, और सूरत से आए थे, तो मैंने बोला हम छोटे बच्चे को लेते नहीं है। बोले नहीं, थोड़ा सा उनको ट्रायल दे दीजिए, हम इतने दूर से आए थे। तो मैंने उनको मौका दिया नेट में जाने का, और मैंने कोच को बताया कि वो जरा टेनिस बॉल से बॉल डाल देना, सीमेंट विकेट पे लेके जाना। टेनिस बॉल से डाला तो मना कर दिया, नहीं सीजन बॉल से डालो, मैं खेलता हूँ। तो सीजन बॉल से बॉल डाला, ही स्टार्टेड ड्राइविंग, प्लेइंग शॉट्स ऑन द बैक फुट। तो वो ये सारे शॉट्स देख के, उनके स्टाइल देख के, उनके आदत पता चल जाता है क्रिकेटर जब छोटा होता है, तो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, तो कृणाल में वो देखने मिला मुझे। सूरत में क्रिकेट की अच्छी कोचिंग उपलब्ध नहीं थी, तो हिमांशु ने बेटे के सपने को उड़ान देने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। बिजनेस, घर, सब कुछ छोड़कर परिवार वडोदरा शिफ्ट कर गया। I always tell people after I'm now a father, what he did for us at that age when neither Krunal, neither I assured anything, neither anyone assured anything, and to leave everything and focus on his sons to just achieve something in his life, which I if I have to take a call right now to leave everything and by all means I love my son, but that will be a very, very challenging call. When we came to Baroda, my house would be maximum 50 square feet, and we used to say 4 people, and I'm not even like exaggerating. That is the house. We still have that house. It's 1 bedroom kitchen would be a size of our washroom area, not even smallest washroom. Bombay houses, right? Smaller than that. So from there, I had people keep asking me one question, that how did your height grow? How did you grow so fast in terms of height? So I kept saying that, when that house, because we didn't have a lot of space, and my father and my brother and mother used to be down, I used to sit on the monkey bar. We had a monkey bar in the house, and I used to watch a lot of things hanging there, upside down, and doing all sort of things. कृणाल के साथ साथ हार्दिक भी मस्ती करने ग्राउंड पे जाने लगा, मगर इस छोटे से बच्चे को किरण मोरे ने जब शॉट्स लगाते हुए देखा तो वो अचंभित रह गए।
उन्होंने हार्दिक को भी एकेडमी में दाखिला दे दिया। रोज हार्दिक आता था उधर साथ में, कृणाल के साथ में, और जहाँ पे बॉल बाहर चले जाते थे, हम लोग टेनिस, जो छोटे बच्चे थे वो टेनिस के कोर्ट में हम लोग उनको प्रैक्टिस कराते थे। तो हमेशा हार्दिक वो टेनिस के कोर्ट के बाहर खड़ा रहने का, कहीं भी बॉल जाने का, भाग के बॉल लेके आने का और थ्रो अच्छा करने का। दोनों बच्चे अब अपने सपने को जीने लगे। लेकिन जिंदगी की लड़ाई मुश्किल होती जा रही थी। कार फाइनेंस का बिजनेस वडोदरा में चल नहीं रहा था। कुछ ही सालों में हिमांशु की हेल्थ खराब होने लगी। 2010-11 आते आते दोनों बच्चे बड़ौदा अंडर 19 टीम में तो आ गए, मगर क्रिकेट अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रह गया था। पैसों की खातिर कृणाल और हार्दिक स्थानीय गांवों में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने लगे। जिन बच्चों के परिवार में कभी 20 से ज्यादा गाड़ियां हुआ करती थी, आज उनके पास ना तो ग्राउंड तक पहुंचने का साधन था और ना ही पेट भर खाने को पैसे। ट्रक से लिफ्ट लेकर ग्राउंड तक पहुंचना और मैगी खाकर पेट भरना रूटीन बन चुका था। I kind of enjoy because looking at myself and where I'm standing and where I was, and as I said, I will not change that for 1% also. I will not change because of all those moments. I respect my good days now more. 2014 में आकर पंड्या बंधुओं की जिंदगी ने करवट ली। मोरे, जो मुंबई इंडियंस के स्काउट भी थे, उन्होंने हेड स्काउट जॉन राइट को दोनों ऑलराउंडर भाइयों पे खास नजर रखने की सलाह दी थी। मार्च 2014 में मुंबई और बड़ौदा के बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच था। मुंबई के कई स्टार खिलाड़ी वो मैच खेल रहे थे तो आकाश अंबानी भी वहां पहुंचे, मगर मुंबई के सितारों की जगह उस मैच में सबका ध्यान बड़ौदा के एक लड़के ने अपनी ओर खींच लिया। There is a saying, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? With me, that's not the saying. With me, whenever I have danced, someone has watched. So I scored 82 not out, we chased 160 down, and then later I realized that Akash was watching the whole game from the stands. अगली नीलामी में मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को 10 लाख रुपए में खरीद लिया। उस मैच में कृणाल ने भी 16 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन उन्हें इंतजार करना पड़ा। दरअसल साल भर पहले से कृणाल का करियर पटरी से उतरने लगा था। वो बड़ौदा की टीम में अपनी जगह खो चुके थे। उसी दौरान जब उन्हें 20,000 रुपए महीने की पोस्ट ऑफिस की नौकरी का ऑफर आया तो पिता हिमांशु ने क्रिकेट छोड़ने की सलाह दी। लेकिन खुद पर यकीन रखने वाले कृणाल ने ऑफर ठुकराकर मुश्ताक अली के ट्रायल्स में हिस्सा लेने का फैसला किया। उन्होंने बड़ौदा टीम में वापसी की और मुंबई के खिलाफ मैच में बढ़िया प्रदर्शन भी किया। अगले साल 2015 में मुंबई ने उन्हें 2 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके बाद दोनों भाइयों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोनों ने भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई और पिछले कई सालों से मुंबई इंडियंस के विजय अभियान में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। जनवरी 2021 में पांड्या बंधुओं के सबसे बड़े फैन उनके पिता हिमांशु का देहांत हो गया, मगर जो सपना उन्होंने देखा था उसे दोनों भाइयों ने ना सिर्फ पूरा किया बल्कि उसे उसी शिद्दत के साथ आज भी जी रहे हैं।